Hello my dear students, in this video we are going to study haloalkanes and haloarenes part 4. In the previous part we studied about the formation or preparation of haloalkanes from hydrocarbons, then formation of iodoalkanes, that is Schwarz reaction, Finkelstein reaction, Hunsaker reaction, physical properties of haloalkanes. We studied in detail the physical properties of haloalkanes: density, dipole moment, their stability, solubility, and lastly the inflammability of haloalkanes. All these topics are already covered in the previous video. अगर आप लोगों ने इसका लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो अगर आप कंटिन्यूएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप ठीक से वॉच करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो माय सजेशन इज़ दैट कि आप पहले वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 को अच्छे से देख लीजिए. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी interesting and important because in this video we will cover nucleophilic substitution reaction and their mechanism. So from this video we are going to start chemical properties of haloalkenes. And haloalkenes and their reactions can be divided into 3 categories. The first one is nucleophilic substitution reaction, the second one is elimination reaction, and the third one is reaction with metals. So first category is nucleophilic substitution reaction. यहाँ से हमको स्टार्ट करना है. अब इसको हम लोग समझते जाते हैं. As we can see कि in case of haloalkenes there is a bond between carbon and halogen. Carbon और halogen के बीच में एक bond होता है and due to the difference in electronegativity this bond is polarized. ये bond जो है वो polarized रहता है. इसका मतलब ये है कि the shared electron of covalent bond are slightly near to the halogen atom. ये halogen atom के ज़्यादा पास है. Why? Because the electronegativity of halogen atom is high. So that's why this halogen atom carries a partial negative charge and the carbon atom become partially positively in charge. तो इस तरीके से ये bond कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है. So now न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत ईजीली अटैक कर सकता है. न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज स्पीशीज़ एटम और मॉलिक्यूल which are generally carries negative charge or excess electron. That's why they attracted towards the positive charge. तो ये जो slightly positive charge आया है on carbon atom, so electrophiles will attract towards these carbons. इस carbon की तरफ ये attract होंगे और attack करेंगे. तो ऐसा होगा. So this carbon atom is susceptible to attack by nucleophile. So suppose this is a nucleophile which is carrying a negative charge और ये जाके अटैक करेगा ये alkyl group पे. Alkyl group means जो positive carbon है उस पे. And there will be a substitution reaction. ये जो halogen atom है ये living group के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और ये जो nucleophile है वो alkyl group से अटैच हो जाएंगे. ठीक है. So when halide ion is a leaving group which leaves with an electron pair is called nucleofuge. इसको हम बोलते हैं nucleofuge. ठीक है. Such a reaction in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile is called nucleophilic substitution, and the atom or group which departs with its pair bonding pair ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप. इसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं. और ये जो अटैक कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयोडाइड आयन इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल. असल में क्या होता है कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो आयोडाइड के केस में सबसे कम होती है. दैट मीन्स जो एल्किल हैलाइड एंड आयोडाइड आयन है उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का अमाउंट बहुत कम होता है. तो थोड़े से एनर्जी से भी ये हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. दैट मीन्स आयोडाइड इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप in comparison with the other halide ions. So there are some examples of nucleophilic substitution. यहाँ पे कुछ nucleophilic substitution के example हैं. The first one is देख लेते हैं. पहला क्या है? Haloalkanes on treating with boiling aqueous alkalis or silver oxide in boiling water undergoes hydrolysis and form alcohol. अभी यहाँ पर देखिए, this is your alkyl halide
and we are taking potassium hydroxide aqueous solution. On heating, there is a nucleophilic substitution reaction. This halide group will substituted by OH group and we will get alcohol. So this is an example of nucleophilic substitution. Secondly, substitution of halogen by alkoxy group. This is a named reaction known as Williamson synthesis. In this reaction, we treated alkyl halide with sodium alkoxide. And what will happen? क्या होगा यहाँ पर? ये जो bond है, just a second, this bond, yes, ये bond यहाँ से break होगा and this bond will be break from here. और ये दोनों सोडियम एंड हैलाइड ये एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और सोडियम हैलाइड, इट में भी सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वॉट एवर हैलोजन इज देयर, ये वैसा रहेगा. और ये वाला ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप एंड दिस एल्कोक्सी ग्रुप OR-, ये एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म ईथर बन जाएगा यहाँ पे. So this is known as Williamson synthesis. This is the example. This is methyl iodide और iodomethane और इसको हम सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं. यहाँ पर सोडियम आयोडाइड बाहर निकल आएगा और मेथॉक्सी मीथेन फॉर्म होगा. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस. ये हम लोग ईथर के प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं और एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप. अभी हम यहाँ पे एल्किल साइनाइड ले रहे हैं, एल्कोहलिक, ठीक है, और हीट करेंगे. देन दिस हेलोजन एटम विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय साइनाइड. तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पली हियर एथेन नाइट्राइल, ये IUPAC नाम है और मेथिल साइनाइड इज़ अ कॉमन नेम, राइट. So the reaction of alkyl halide with KCN give us a convenient method for increasing the length of carbon chain by one carbon atom. देखिए कई बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सपोज देयर इज़ अ कंपाउंड A which is reacting with compound B and producing a compound C. इस टाइप का क्वेश्चन आता है. तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं कि जो मेन सबस्ट्रेट है आपका, उसके कार्बन नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज़ करना है, कार्बन चेन को, तो उस केस में हम ये वाला रिएक्शन यूज़ करते हैं. क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दिस इज़ अ एल्किल हैलाइड विथ कार्बन नंबर 1 ओनली, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है और जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है हियर इट कंटेन्स 2 कार्बन. तो जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ करना होता है देन वी हैव टू रिएक्ट द एल्किल हैलाइड विथ पोटेशियम साइनाइड, ठीक है. व्हेन हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विथ सिल्वर साइनाइड द मेन प्रोडक्ट इज आइसोसाइनाइड. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लिए दिस पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड बोथ लुक्स लाइक सिमिलर, दोनों के दोनों हमको सेम दिखते हैं. तो जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करा रहे हैं देन वी आर गेटिंग साइनाइड कंपाउंड, ठीक है. और लेकिन जब हम सेम रिएक्शन कराते हैं विथ सिल्वर साइनाइड देन जनरली वी एक्सपेक्ट कि इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस एल्किल साइनाइड. लेकिन ये एल्किल साइनाइड नहीं बनाता, ये एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है. एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ इज़ टोटली डिफरेंट, बहुत ही अलग होते हैं. सो नाउ क्वेश्चन इज अराइजेज कि वाई पोटेशियम साइनाइड इज़ गिविंग एल्किल साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड इज़ गिविंग आइसोसाइनाइड. तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो पोटेशियम साइनाइड है, क्योंकि पोटेशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है. एंड इट इज़ अ टिपिकल मेटल, सॉरी नॉट मेथड, इट इज़ अ टिपिकल मेटल. तो जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है. सो द नेचर ऑफ पोटेशियम साइनाइड इज़ आयोनिक वेयर एज द नेचर ऑफ सिल्वर साइनाइड इज़ स्लाइटली कोवेलेंट. ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड नहीं है, आयोनाइजेशन इसमें अच्छे से नहीं होता. So at that condition carbon is not free for the bonding. तो किसको मौका मिलता है? नाइट्रोजन को. तो इसीलिए एल्किल ग्रुप से कौन अटैच हो जाएगा? नाइट्रोजन, एंड वी विल गेट आइसोसाइनाइड. अभी देखिए यहाँ पे व्हेन हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विथ सिल्वर साइनाइड द मेन प्रोडक्ट इज आइसोसाइनाइड बिकॉज सिल्वर साइनाइड इज कोवेलेंट इन नेचर एंड नॉट आयोनाइज इनटू सिल्वर आयन एंड साइनाइड आयन. So nitrogen is free to donate electron pair forming आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट. मतलब जो बॉन्डिंग होगी कार्बन के साथ वो नाइट्रोजन की होगी, ना कि कार्बन की. बट इन केस ऑफ पोटेशियम साइनाइड इट इज़ अ गुड आयनिक कंपाउंड, दैट मीन्स ये अच्छे से आयोनाइज हो जाता है. एंड हियर
carbon is attached with the alkyl group, that's why we get cyanide. Okay. The next example is substitution of chlorine or bromine by iodine. This is a special kind of reaction which is known as Finkelstein reaction, and this reaction is especially used for preparation of iodide, alkyl iodide, by the other haloalkanes. Here we are using chloroethane and reacting with potassium iodide in presence of acetone, it's giving iodoethane. So this reaction is called Finkelstein reaction and used for the preparation of alkyl iodide from alkyl bromide or chloride. Because alkyl iodide are quite unstable and they are highly reactive in nature, तो हम इसको बना के स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इसीलिए इसको इमीडिएटली प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग ब्रोमाइड और chloride. So now what are the mechanism of nucleophilic substitution reaction? It's very interesting topic. There are actually two kind of nucleophilic substitution reaction. इसका जो mechanism है वो दो टाइप का हो सकता है. The first one is SN2 mechanism and the second one is SN1 mechanism. ठीक है. अब ये जो SN2 mechanism है इसका फुल फॉर्म होता है S for substitution, N for nucleophilic and 2 for bimolecular. Similarly substitution, nucleophilic, unimolecular. ओके, सो वन बाय वन हम इसको डील करते हैं. द फर्स्ट वन इज SN2. अभी लेट अस टेक SN1 मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं. लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन. It will produce an alcohol and chloride ion will be the leaving group. This reaction follows the second order reaction. What does it mean कि second order reaction, the rate determining step will involve at least 2 molecules, तो तभी ये second order reaction होगा. So rate is equal to K into concentration of methyl chloride into concentration of hydroxide ion. तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन होता है दैट मीन्स व्हेन दिस न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टू दिस सबस्ट्रेट, ठीक है, सो देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पर कोई ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है. ठीक है, लेट मी क्लियर कि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनेगा. देयर विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन एंड क्लोराइड आयन बोथ विल बी कनेक्टेड और ज्वाइंट विथ कार्बन एटम, बट दिस इज़ अ हाईली अनस्टेबल एंड हाईली एनर्जेटिक स्टेट. तो ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट. दैट मीन्स आउट ऑफ दीज टू बॉन्ड्स जिसमें कार्बन हाइड्रोक्साइड से भी अटैच्ड है और हेलोजन से भी अटैच्ड है, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि दिस इज़ और मेथिल क्लोराइड एंड दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल. तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर अटैक करता है एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. अभी आप देखो कि ट्रांजिशन स्टेट में देयर आर 3 हाइड्रोजन, ये कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट है, बट दिस क्लोरीन एटम एंड दिस OH ग्रुप, ये दोनों के दोनों भी कार्बन से अटैच्ड हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है. एंड हियर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज शोइंग 5 विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है. दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो बट दिस स्टेट इज़ हाईली अनस्टेबल एंड इट इमीडिएटली डिसोशिएट्स इनटू दिस लिविंग ग्रुप एंड दिस प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये यहाँ पर दिस इज़ द स्लोवेस्ट वन. तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है एंड इट इन्वॉल्व्स हाइड्रोक्साइड आयन एंड क्लोरोमेथेन. तो इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है. ठीक, तो ये जो SN2 यहाँ पे जो लगाया वो दिस इज़ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड इट इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक, अब यहाँ पे मैकेनिज्म में ख़ास बात ये रहती है कि कभी भी ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक्ट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. ये लिविंग ग्रुप है, ये जो रेड कलर में यहाँ पे शो हो रहा है दिस इज़ आवर लिविंग ग्रुप. तो ये जो OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप है जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से जाके अटैक करेगा. ठीक है, तो जब ये बैक साइड से जाके अटैक करेगा तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी और फाइनली दिस क्लोराइड आयन विल लीव द कंपाउंड. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में अलग हो जाएगा एंड वी विल गेट मेथेनॉल.
ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आप इसका देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी कंपाउंड है उसका इन्वर्जन हो जाता है। अगर ये कार्बन किरल नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये किरल है तो आपको इसका दूसरा आइसोमर मिलेगा। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप सब लोगों ने अम्ब्रेला देखा है। तो अम्ब्रेला को अगर हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चले और अम्ब्रेला आपका बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाए, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पर आप देखो कि ये तीनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं और ये क्लोरीन है, और जब यहाँ पे OH आके अटैक करता है और फाइनल प्रोडक्ट जब आपको मिलता है तो OH अपोजिट साइड है और ये जो हाइड्रोजन थे वो दूसरे साइड पे चले जाते हैं। ठीक है। So in transition state, carbon atom is bonded to five atoms and thus the transition state is highly unstable and cannot be isolated. ठीक है। Being unstable, it ultimately decompose to form product. जो भी product है उसमें ये decompose हो जाएगा. Now there is an important point. In SN2 reaction, the attack of the nucleophile occurs from the back side, जो मैं आपको अभी अभी बता रही थी, and the leaving group leaves from the front side. ये front side से leave करता है. As a result, the reactions are always accompanied by inversion of configuration, just in the same way as an umbrella turns inside out in a strong wind. जो अभी आपको example umbrella वाला मैंने दिया, same चीज़ ना. This kind of inversion of configuration is known as Walden inversion. ये बहुत ही important point है. ठीक है। So here SN2 reaction is completed now. If there is any doubt then you can ask in comments. Okay. The second one is SN1 reaction. Now you will be able to clearly differentiate between SN1 and SN2. This is substitution nucleophilic unimolecular reaction. Now what happens in case of generally SN1 reaction generally carried out in the polar protic solvents such as water, alcohol, acetic acid etc. तो हम यहाँ पे एक दूसरी कैटेगरी का रिएक्शन कंसीडर करते हैं, सच एज टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड, एंड व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म आल्सो अल्कोहल, बट हियर this is not a bimolecular reaction, this is a unimolecular reaction and it follows first order reaction. इसका मतलब ये हुआ कि जो rate of reaction है is not depending on the concentration of hydroxide ion. The rate of reaction is only dependent on the tertiary butyl alcohol molecule. दिस इज़ द रिएक्शन. देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है, आपको देख के भी सेम लग रहा है, बट इट्स मैकेनिज्म इज़ टोटली डिफरेंट. हाउ इट्स मैकेनिज्म इज़ डिफरेंट. अब यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप, ये दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. जो फर्स्ट स्टेप है विच इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो कि बहुत ही स्लो है, इसमें आयोनाइजेशन होता है एंड this leaving group ionizes in the form of bromide और there is a formation of carbocation. कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है. This is the slowest step and due to the slowest step this is a rate determining step and it involves only one molecule, that's why it is of first order reaction. अब यहाँ पर ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया तो अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप और इमीडिएटली वी विल गेट द प्रोडक्ट. Actually what happens in SN1 reaction that this upcoming nucleophile attached exactly on the position of the leaving group, so there is no any kind of inversion occurs. कोई भी inversion यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो गया. अब ये ब्रोमाइड आयन है, इसकी जगह यहाँ पे खाली हो गई, तो ईजिली जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोकेटायन एंड इट विल जॉइंट विथ दिस कार्बन. तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा एंड देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ इन्वर्जन यहाँ पर नहीं होने वाला है. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि इन SN2 रिएक्शन जो हम लोगों ने फर्स्ट मैकेनिज्म देखा विच वॉज द सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन, तो जो अटैक होता है ऑफ न्यूक्लियोफाइल आकर्स फ्रॉम द बैक साइड. ठीक है, ये बैक साइड से होता है, जो अल्फा कार्बन है उसके बैक साइड से होता है. Therefore, presence of bulky substituent on or near the alpha carbon atom tends to hinder or block the approach of the nucleophile to the alpha carbon due to steric hindrance. Thus, it makes the reaction difficult to occur.
अगर मान लीजिए सपोज हम मेथिल हैलाइड ले रहे हैं, तो मेथिल हैलाइड में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ओनली 3 हाइड्रोजन, कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, सपोज यू आर इन अ रूम एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं और आप एकदम लास्ट में और आपको वहाँ से बाहर निकलना है। तो जब आप बाहर निकलना चाहो उस भीड़ में से, तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों हो रही है? बिकॉज मैनी पीपल्स आर प्रेजेंट देयर, तो ये आपको बाहर निकलने से रोक रहे हैं। सिमिलरली व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ बल्की ग्रुप विच आर ज्वाइंट विथ कार्बन, जब बड़े बड़े एल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, सपोज मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप और प्रोपिल ग्रुप, तो वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देते, इसलिए क्या होता है, उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। आपको उस रूम से निकलने में प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर, सपोज वो रूम खाली है और आपको बाहर निकलना है, तो आप इजीली निकल सकते हो, या रूम में सिर्फ 4 पर्सन अवेलेबल है, तो आपको निकलना है तो आप इजीली निकल पाते हो। ठीक है, तो मेथिल हैलाइड में देयर आर प्रेजेंस ऑफ ओनली 4 कार्बन, तो सिर्फ 4 ही कार्बन है वहाँ पे, 4 ही हाइड्रोजन है, नॉट कार्बन ना, 4 भी नहीं, 3 हाइड्रोजन्स एंड 1 एल्किल ग्रुप, 1 हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे मेथिल हैलाइड जो है वो SN2 के लिए बहुत ही ससेप्टिबल है, बहुत इजीली SN2 रिएक्शन देगा। बट प्राइमरी हैलाइड थोड़ा डिफिकल्टी से देंगे, सेकेंडरी और डिफिकल्टी से देंगे, और टर्शरी और डिफिकल्टी से देंगे। बट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, एंड कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होगा। सो टर्शरी कार्बोकेटायंस आर हाईली स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल। तो टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एंड ईजिली इट विल गो थ्रू द SN1 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन को प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको पहचानना हो कि सपोज यू हैव, जस्ट अ सेकेंड, सपोज आपके पास एक मेथिल हैलाइड है और मान लीजिए अगर एक कोई ऐसा हैलाइड है आपके पास, लाइक दिस। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा मैकेनिज्म कौन फॉलो करेगा, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, और ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन को प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो ये किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, SN1 मैकेनिज्म को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, अगर एल्किल हैलाइड हम ना बदलें, हम हेलोजन एटम्स को चेंज कर दें, सपोज एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इनकी पोलैरिटी को देखें तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज हाईली पोलर, देन कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन। तो ये इनकी पोलैरिटी को का सीक्वेंस देख के हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पोलर है तो इसको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, बट एक्चुअली दिस नॉट हैपन्स, ऐसा होता नहीं है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पे देखिए, एल्किल आयोडाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, देन एल्किल ब्रोमाइड, देन एल्किल क्लोराइड, एंड एल्किल फ्लोराइड्स आर लेस रिएक्टिव। तो इसका रीज़न ये है कि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इस टाइप से होती है। ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन है, इट्स 452 किलो जूल पर मोल, कार्बन क्लोरीन का 351, कार्बन ब्रोमीन 291, एंड कार्बन आयोडीन 234। सो कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड कंपेयर टू द अदर वन, दैट्स वाई आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द अदर हैलाइड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स।